Hi, I'm Shafqat Alam and I'm from Tiljala Society for Human and Educational Development, working in Kolkata. Our founder and inspiration is my father, Muhammad Alamgir. Despite coming from humble background, he is the first law graduate in this community in the early 1980s. After graduating, instead of practicing law, he decided to dedicate his life for the community. He would say that he was doing this because he was selfish. He would say that we belong to the community, and if poverty is not controlled now, crime will only get worse. So it is in my selfish interest to continue my father's vision. नॉर्मली जब हम स्लम में लोगों को देखते हैं, वी माइट फील बेचारे, बट स्लम के अंदर भी देर आर सम पीपल दैट द स्लम पीपल देमसेल्व्स लुक डाउन अपॉन. Yes, they are the Ragpickers community. They are the people who scavenge out of the waste and sell those things to make a livelihood. They face social ostracism because of their profession, and people consider them filthy for going through trash. स्लम के अंदर भी आज भी हायरार्की है, और ये बेचारे उस हायरार्की में भी सबसे नीचे हैं. आज के दिन भी कोलकाता में एस्टिमेटेड 80,000 से 1,20,000 रैगपिकर्स हैं. At Trijala Shed, we rescue the children from rat picking and put them into schools. Some of these children have never been to school until the age of 12 years. स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. We do after school joyful learning classes in which the primary school children learn words through games and play, and the older kids learn English, maths, and science through our visual learning tools. We also provide them with a nutritious meal, give access to a library, and do other extracurricular activities like taekwondo. और हम बच्चे को एजुकेशनल टूर के लिए भी ले जाते हैं. इस तरह से हम अपने बच्चों का होलिस्टिक लर्निंग करवाते हैं. Our mission is to create one graduate in each rag-picking family. So far, we have admitted almost 20,000 children into schools, but the one thing we are really proud of is the reduced number of school dropout rate, which was more than 50% in the first 10 years and now stands at just 2%. In the Ragpickers community, we found women were more receptive to change, so we trained them to create women self-help groups. यहाँ पर हम उनको कोऑपरेटिव बैंक्स और साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी जोड़ते हैं. अब क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और रैगपिकिंग नहीं करते हैं, हम उनके मदर्स को तिलजला शेड के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम से कंपेंसेट करवाते हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. हम उनको बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, जिनसे वो अपना स्मॉल स्केल बिजनेसेस जैसे कि फ्रूट सेलिंग, टी शॉप एटसेट्रा वगैरह शुरू कर सकें. From the early 80s, when the Orthodox family never allowed the girls to study beyond class 6, now 75% of the girls are completing class 10 and class 12 and even becoming graduates. Instead of marrying at 14, girls are choosing to pursue education and get some skill training for a job. आप देख सकते हैं नाजिया को, शानिया को, सुल्ताना को और राजलक्ष्मी को प्राउडली होल्डिंग देयर अवार्ड्स विच दे हैव वॉन इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस. ये इनका सुनहरा कल है. ये अनीशा है जो अपने फैमिली के साथ बचपन में रैग पिकिंग करती थी. तिलजला शहर में पढ़ने के बाद उसे ताज सेट्स में नौकरी मिली एज अ शेफ. आज भी मुझे वो दिन याद है जब अनीशा पहली बार मेरे साथ ताज सेट्स गई थी. उसके हाथ कांप रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसको ये यकीन था कि यही वही जगह है कि जहां पर से उसकी किस्मत बदल सकती है. नाउ अनीशा इज कंसिडर्ड एज अ मॉडल एग्जाम्पल इन हर कम्युनिटी. Recently, she has been awarded for her grit and perseverance, along with 9 other girls, by the British Deputy High Commissioner at Kolkata. क्या होगा अगर हर एक कम्युनिटी में ऐसे अनेक अनीशा हो तो? हमारा 2 साल का प्लान है टू रीच मोर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज बाय वर्किंग इन मोर स्लम्स एडजेसेंट टू आवर करेंट कम्युनिटीज. और ये गोल अचीव करने के लिए हम अपने फुल्ली इक्विप्ड लर्निंग सेंटर्स को डबल करना चाहते हैं. इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम अपने बच्चों को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकें. एंड टू क्रिएट वन लर्नर इन ईच फैमिली इज अवर विजन. फॉर ₹19,500 आप एक बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं, और हम अपने सारे लर्निंग सेंटर्स को कंप्यूटर्स और इंटरनेट के साथ अपलिफ्ट करना चाहते हैं. अब उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि हर बच्चे को एक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सके. आपके सहयोग से हम अपना ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं.
जैसे कि मेरे फादर ने कहा था, आई एम सेल्फिश। आइए हम सब सेल्फिश बन जाते हैं, अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, और ऐसे अनेक अनीशा और अकबर के ड्रीम्स को साकार करने में उनकी मदद करें। जय हिंद।